Today we shall discuss on a topic that is important steps of research process. In order to understand the research as a concept, we have discussed about qualitative and quantitative research. As for example, philosophical, historical and ethnographic research come in the category of qualitative research, whereas experimental and correlational research come in the category of quantitative research. There are differing opinion about the survey research, so you can also understand that it has a mixed nature. Survey research has a mixed nature. So far as these important steps of research process is concerned, it is not absolute. For qualitative research, it may be different, and for quantitative research, it may be different. Whatsoever steps we shall discuss today is most suited to the quantitative research, but in the process there are certain steps which is also important for qualitative research. We shall discuss the concept in detail, that is important steps of research process. But in the process, firstly, as we usually do, outline the lecture. So you can see these are the important steps. Number 1, identification of the research problem, followed by defining and delimiting the research problem, review of related literature, formulation of hypothesis, identification, manipulation and control of variables related to a study, formulation of research design, development or selection of the tool for data collection, sample selection and data collection, data analysis and interpretation, conclusions, implications and suggestions, and the last one is preparation of report and publication. So these are certain important steps of the research process, and in the lecture we shall discuss all these steps in detail. Identification of research problem we shall discuss in detail. So we will discuss how defining and delimiting the research problem, what are the use of review of related literature, how we formulate hypothesis and what is hypothesis. We shall deal with different related variables, research design, that is a type of blueprint that guides the research. So we shall discuss in detail the important step, that is research design. Then tool for data collection, sampling and data collection, data analysis and interpretation, conclusions, implications and suggestions. So this is not so much important, but for certain purpose the preparation of report and publication is also an important part. Preparation of report is of course important part, but it may not be published, or sometime it may be published. So we have outlined the lecture. Now we shall start the lecture from the first important step of research process. And what is that? That is identification of research problem. So we shall start our lecture
by discussing all the related steps which we have identified. So let us start the lecture. So we are to discuss the first step, that is identification of the research problem, because without a problem we cannot do research, and we cannot get a problem in any soap. What are the basis of identifying a problem? So the first bullet takes birth from felt difficulty and literature. It means from where the research problem comes. The research problem comes from felt difficulty and the literature, review of related literature. या तो हम अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को जो महसूस करते हैं वहाँ से हमको एक समस्या मिलती है, या फिर जो हम पढ़ने के क्रम में लिटरेचर पढ़ते हैं, और ये दोनों के लिए सही हो सकता है। खास के यदि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें लिटरेचर का ज़्यादा योगदान होगा, लेकिन इधर क्वांटिटेटिव रिसर्च में फेल्ट डिफिकल्टी का भी बहुत योगदान है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जननी है रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम वैक्यूम में नहीं आता है, रिसर्च प्रॉब्लम का अपना एक बेसिस होता है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। सपोज वी टेक ए प्रॉब्लम, ए स्टडी ऑफ एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सपोज एप्टीट्यूड। Then aptitude of who? Aptitude of what? So the understanding of the problem needs to be complete, otherwise the problem has no meaning. So we have to understand the problem in a complete sense, in a complete form, and if it is not complete, then the next step we have, rather next bullet we have identified, to restructure the problem into meaningful terms. मतलब हमको क्या करना है? ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉब्लम को एक बार आइडेंटिफाई कर दिया तो वो काफ़ी है। हमको उसके रिलेटेड वेरिएबल्स को चूज करने पड़ेंगे ताकि ये कंप्लीट प्रॉब्लम हमको मिल सके। जैसे हम यदि लेते हैं ये एप्टीट्यूड है, ये स्टडी ऑफ द एप्टीट्यूड ऑफ, अब वहाँ हमको डिसाइड करना पड़ेगा द टारगेट ग्रुप, और फिर बहुत सारी चीज़ों के डिसीजन के बाद हम उस प्रॉब्लम को मीनिंगफुल टर्म्स में डिफाइन करें। और इस क्रम में हमको ध्यान रखना पड़ेगा टू जज द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक्सपर्टीज। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इमोशंस में किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम के सिलेक्शन में जरूरी है कि हम इस बात की भी गारंटी कर लें कि क्या हमारा प्रॉब्लम दिए गए समय में, कितने समय में खत्म हो सकता है, और क्या उसके बारे में ऑप्टिमम ज्ञान हमारे पास है, या फिर मेरा जो रिसर्च गाइड है जिसकी हम मदद लेके अपने रिसर्च को कंप्लीट करने वाले हैं, वो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट है उस फील्ड के या नहीं। तो मतलब गाइड जिसके अंडर में हम काम करने वाले हों, या फिर हम स्वयं एज ए रिसर्चर, हमको उस एरिया में एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। मतलब हम ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जिसमें हमको ध्यान नहीं। और तीसरा एक एस्पेक्ट हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है, फंड। बहुत सारा रिसर्च का फंडिंग होता है। यदि हम प्रोजेक्ट वगैरह के रिसर्च की बात करें तो उसमें फंड है कि इतने ही पैसे में उस कार्य को कंप्लीट कर देना है। सो इन ऑर्डर टू फाइनलाइज ए रिसर्च प्रॉब्लम वी हैव टू कंसीडर टाइम, एक्सपर्टीज एंड फंड एक्सेट्रा। और प्रॉब्लम के लिए न्यूनेस का होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च प्रॉब्लम जिसमें ऑलरेडी काम हो चुका है उसी रिसर्च प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें
और उसी पे काम करें। सो नॉट कॉपी ऑफ वर्ल्ड वर्क्स, मतलब पुराना जो काम है उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, गैप कुछ काम में होना चाहिए, मतलब ये लगना चाहिए कि हमने कुछ नया काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं उसको लेके हम यदि शोध कार्य कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। और महत्व जब किसी भी चीज का हम देखते हैं तो दो बिंदु पे देखते हैं, एक लाइफ कि जीवन में उसका क्या महत्व है, और दूसरा फर्दर स्टडीज, मतलब या तो वो फंड ऑफ नॉलेज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर डे टू डे के एप्लीकेशन में मानव को किस किस तरह का थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल हेल्प दे रहा है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज ए वेरी complicated and expertise needed step in which we have to consider so many factors. So I have to identify a problem and then we have to restructure the problem so that we can work on it with authority. और रिसर्च प्रोसेस का दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब हमने प्रॉब्लम, खाली थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की, लेकिन जब हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको हमको डिफाइन भी करना है और डिलिमिट भी करना है। और डिफाइन और डिलिमिट करने के क्रम में हमको क्या करना है, आउटलाइन द एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सेफ्टी। सपोज हमने एक प्रॉब्लम लिया, ये स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये हम क्रिएटिविटी की स्टडी किसकी करें, तो फिर वहां हम कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी अमॉन्ग सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो फिर सेकेंडरी क्या इंडिया के पूरे सेकेंडरी स्कूल्स का लेंगे, तो फिर इसको भी छोटा कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये सेकेंडरी पॉपुलेशन हो गया और इसमें से सैंपल निकालेंगे, संभव है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम ले लें। तो मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन और डिलिमिट करने के क्रम में सबसे पहले हमको पॉपुलेशन एट सैंपल को डिसाइड करना है कि हमारा कौन सा ग्रुप है जिस पे हम ये काम करने जा रहे हैं। और डिफाइनिंग द रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑपरेशनली, ऑपरेशनली का मतलब है कि जो ऑपरेशन में, मतलब हम अपने रिसर्च में उस टर्म को किस रूप में लेने जा रहे हैं तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्रिएटिविटी को ही है, तो क्रिएटिविटी को हम कैसे डिफाइन करें, तो हमने कहा कि नहीं, क्रिएटिविटी को हम लोग तीन टर्म में डिफाइन करेंगे, फ्लुएंसी के टर्म में मेजर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में मेजर करेंगे और ओरिजिनलिटी के टर्म में मेजर करेंगे। तो मतलब यह है कि कंसेप्ट को, जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम किस रूप में लेंगे, उस रूप में उसको डिफाइन करने को ही ऑपरेशनली डिफाइन करना कहते हैं, जिसको ऑपरेशनल डिफिनीशन भी कहते हैं मेजरमेंट के टर्म। अब मान लो कि यहाँ हम फिर कहते हैं ये स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू सेक्स या लोकलिटी को भी हमको डिफाइन करना, इसका ऑपरेशनल डिफिनीशन क्या होगा। तो लोकलिटी में मान लीजिए हम कहते हैं कि लोकलिटी मीन अर्बन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट एंड रूरल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। सो इन दिस वे वी डिफाइन द प्रॉब्लम ऑपरेशनली, मतलब ऑपरेशनली का सीधा मतलब यह है कि किस रूप में दिए गए संप्रत्यय को, दिए गए कंसेप्ट को हम अपने रिसर्च में यूज करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप was defining and delimiting the research problem. Then comes review of related literature. Review of related literature means having certain knowledge regarding the area in which we are working. हमने पहले व्यक्ति के रूप में क्रिएटिविटी रिसर्च पे काम नहीं शुरू किया है, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया। क्या काम किया, कैसे काम किया और क्या क्या और किया जा सकता है, इन सब की जानकारी तभी संभव है जब हम रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू को हम लोगों ने जो
फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए पावर पॉइंट बनाया है बुलेट। उसका पहला बुलेट कह रहा है इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू सेलेक्ट वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। मतलब हमने बहुत सारी रिसर्च की, स्टडीज को पढ़ा, रिव्यू किया, देखा कि अच्छा मेल के टर्म में किया, फीमेल के टर्म में किया, सेक्स के टर्म में किया, लोकेलिटी के टर्म में किया, इथनिसिटी के टर्म में किया, एंजाइटी से क्रिएटिविटी का रिलेशन देखा, एडजस्टमेंट से क्रिएटिविटी का रिलेशन देखा, एंड सो प्लेंटी ऑफ कंसेप्ट you can come to know, and in the process you will be able to identify the related variables. So review of related literature बड़ी सहायता करता है रिसर्चर को वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने कि हमको क्या क्या काम करना है। दूसरी बात कर रहा है एस्टिमेट्स द प्रीवियस वर्क टू सजेस्ट मीनिंगफुल एक्सटेंशन ऑफ द वर्क्स। पहले क्या काम हुआ उसकी जब जानकारी हो जाती है तो स्वतः यह ज्ञान होने लगता है कि इसमें और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। और जब हम बहुत सारी रिसर्च में देखेंगे तो उसमें लोग सजेशंस भी डालते हैं, सजेशंस फॉर फ्यूचर स्टडीज, वहां से भी बहुत सारी चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस रूप में भी हमको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प करता है। तीसरी बात है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। हमने अभी शुरू में कहा कि रिसर्च का जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये किसी के किए गए काम की मेयर कॉपी नहीं होनी चाहिए। कैसे पता चले जब हम रिसर्च के रिव्यू को देख रहे हैं तुमको लगता है ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, ये भी काम हो गया है, लेकिन ये किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है जो टर्म है इसी को हम लोग रिसर्च गैप्स कहते हैं। और जब हम रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा रिसर्च ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, और ये तभी संभव है जब हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। तो ये एक फायदा रिव्यू का। फिर इट प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स सिलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन्स एक्सेट्रा। मान लीजिए कि कोई रिसर्च की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उसमें टी टेस्ट यूज किया है, आई स्क्वायर का टेस्ट कब इस्तेमाल किया है, एफ टेस्ट कब किया है, कैसे डाटा को एनालाइज किया है। तो टूल्स के सिलेक्शन पे, स्टैटिस्टिक्स के सिलेक्शन पे, डाटा एनालिसिस कैसे किया है, और फिर कंक्लूजन्स कैसे विड्रॉ किया है, और बहुत सारे स्टेप्स इसमें मेंशन नहीं है। इवन हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करें, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रिव्यू से हो जाएगा। क्योंकि रिव्यू में हमको ये पता चलेगा कि आदमी ने अपना शुरू से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर कंक्लूजन्स तक के काम को किस तरह से कंप्लीट किया है। सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रीवियस जो स्टडी है उसकी जब हम रिव्यू करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स सिलेक्शन में हमको मदद मिलती है, डाटा एनालिसिस में मदद मिलती है, कंक्लूजन्स में, और इवन हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के आइडेंटिफिकेशन। और एक और महत्व है इसका जो आगे के पॉइंट में है, सेव फ्रॉम डुप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली डन वर्क। मतलब जो पहले काम हो चुका है इसकी जानकारी भी हमको हो जाती है, और इसीलिए हम अपना ऐसा काम करते हैं। संभव है हम टारगेट ग्रुप भी बदल देते हैं। जैसे किसी ने यदि सेकेंडरी पे क्रिएटिविटी पे किया है तो हम सेकेंडरी पे उस पॉपुलेशन या उस एरिया में नहीं करके हम प्राइमरी पे भी कर सकते हैं, हम और भी दूसरा ले सकते हैं। तो ये आइडिया भी मिलता है, और हम पहले के किए गए काम को फिर नहीं करके उसको एक नयापन देने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इट हेल्प्स इन कंपाइलिंग द एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि यह नॉलेज के फंड में कुछ ऐड करे, और आज के एज में इंफॉर्मेशन का प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सारे रिव्यू को एक जगह हम लाके कैटेगरी वाइज, वेरिएबल वाइज रख देते हैं तो दूसरे रिसर्चर को मदद होती है। इसी को कहते हैं कंपाइलेशन। सो इट हेल्प्स इन कंपाइलिंग द एक्सपेंडिंग एंड ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब यदि क्रिएटिव सेकेंडरी स्कूल के क्रिएटिविटी में सेक्स वेरिएबल से क्या काम हुआ तो उसकी सारे फाइंडिंग्स को एक जगह
फिर इथनिसिटी पे क्या हुआ, फिर लोकेलिटी पे क्या हुआ, प्राइमरी में क्या हुआ, सेकेंडरी में क्या हुआ, ट्राइबल में क्या हुआ, और इस तरह से बहुत सारे नॉलेज को हम एक जगह ला के फ्यूचर रिसर्च के लिए नॉलेज के एक फंड के रूप में भी उसको बढ़ा सकते। सो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. In quantitative research, even in survey research, as we have told, survey research also been considered as qualitative research. लेकिन होता क्या है कि हाइपोथेसिस का सिलेक्शन जनरली हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए करते हैं, और उस क्रम में हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी सिलेक्शन करते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जहां ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों का कहना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव के अलावा हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस की तभी जरूरत है जब हम उसको टेस्ट करें. लेकिन हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में बिना हाइपोथेसिस के काम नहीं करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते ही हैं. इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च की दृष्टि से संभव है कि हाइपोथेसिस एक इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी तुलना में ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. जैसे विवेकानंद एवं गांधी के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये ऑब्जेक्टिव है. इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव से ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइपोथेसिस, क्योंकि बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हम लोग आगे नहीं. तो पहला बुलेट में हम लोग कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है. स्टेटमेंट, इट इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन different chosen variables. So what is hypothesis? The first bullet explains. मतलब इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को स्टेट करना, कहना, कथन के रूप में कहना, ये जरूरी है. दूसरी बात है कन्वर्सन इनटू टेस्टेबल स्टेटमेंट. मतलब स्टेटमेंट को जब हम इस रूप में लिखते हैं कि उसका टेस्ट किया जा सके, उसका वेरीफाई किया जा सके, उसको स्टैटिस्टिक्स लगा के टेस्ट किया जा सके, तो वो हाइपोथेसिस बन जाता है, और वो टेस्टेबल स्टेटमेंट ही हाइपोथेसिस है. ये अनबायस्ड रिसर्च डिमांड्स हाइपोथेसिस इन एडवांस. मतलब ये नहीं है कि आप रिसर्च का प्रॉब्लम करके डाटा वगैरह कलेक्शन कर लीजिए और तब हाइपोथेसिस का निर्माण करिए, तब वो बायस्ड रिसर्च हो जाएगा. कह रहा है कि अनबायस्ड रिसर्च डिमांड्स हाइपोथेसिस इन एडवांस. मतलब रिसर्च के स्टार्ट से पहले, इवन डाटा कलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाना चाहिए. और इसीलिए जो हमारा रिसर्च का सिनॉप्सिस होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस लिखना. तो ये एडवांस में हो जाता है. It helps to decide data gathering process in the advance. जैसे ही हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं, तो हाइपोथेसिस के निर्माण के कारण हमको ये जानकारी हो जाती है कि किस तरह से हमको डाटा का कलेक्शन करना है, डाटा का इंटरप्रिटेशन करना है, डाटा का एनालिसिस करना है. जैसे ही हम यहाँ कहते हैं there is no significant difference between the creativity score of male and female students. It is an example of hypothesis. तो ये इसका मतलब है कि हमको अब कंपेयर करना है मेल और फीमेल के क्रिएटिविटी के स्कोर. तो ये एक डायरेक्शन दिया. और यदि आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको टी और एफ का इस्तेमाल करना होगा. उसी तरह से और भी चीज को हेल्प करने में, मतलब यदि हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं तो हमको सारी चीजों का डिसीजन लेने में सहूलियत होती है. इट मस्ट नॉट बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा. हमने शुरू में कहा कि अनबायस्ड रिसर्च का एक पार्ट है कि रिसर्च हाइपोथेसिस का निर्माण पहले हो, जिसकी मदद से हम बहुत सारी
रिसर्च के और भी डिसीजंस को और भी स्टेप्स को निर्धारित करते हैं, तो इसका निर्धारण वेल बिफोर टाइम होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट चूजन वैल्यूज। और यदि हम हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं तो हमको कैसा टूल इस्तेमाल करना है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्शन के फलस्वरूप उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो हाइपोथेसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्पेशली फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। हमने पहले ही कहा कि जब हम लोग रिसर्च के वेरिएबल्स को रिव्यू की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ सर्टेन वेरिएबल्स को ही अपनी रिसर्च में ले सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को डिलिमिट करेंगे तो हमको निर्धारित करना पड़ता है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अब वेरिएबल में अब यहाँ हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लिया, स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू सेक्स भी कहा, इन रिलेशन टू इथनिसिटी भी कहा, इन रिलेशन टू लोकेलिटी भी कहा। अब ये यहाँ कह रहा है 3 तरह के वेरिएबल्स के बारे में विस्तार से अलग लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे। यहाँ हम लोग अभी 3 ही वेरिएबल की बात करेंगे जो मतलब हर रिसर्च में है और खास के क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब ये होता क्या है पहले इसको हम लोग समझें। जैसे यहाँ कहा कि मेल का टेस्ट लेंगे, मेल स्टूडेंट का, फीमेल स्टूडेंट का, मेल स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे, फीमेल स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे, किस चीज? क्रिएटिविटी का मेल का स्कोर मिल गया, क्रिएटिविटी का फीमेल का स्कोर मिल गया। अब यदि क्रिएटिविटी में मेल एक्सेल करता है या फीमेल एक्सेल करता है, यही 2 तरह का ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा आता है तो अब आप सोच के बताइए कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब नाम से ही है कि जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं करता है, जो फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट? क्रिएटिविटी मेल भी एक्सेल कर सकता है, फीमेल भी एक्सेल कर सकता है। मतलब कि क्रिएटिविटी बदल सकता है, क्रिएटिविटी निर्भर करता है किस पे? सेक्स पे। लोकल, अर्बन स्टूडेंट, रूरल स्टूडेंट में भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये सेक्स के अलावा लोकलिटी पे भी निर्भर कर सकता है। ये ट्राइबल और अनट्राइबल मतलब इथनिसिटी पे भी निर्भर कर सकता है। तो कौन डिपेंड कर रहा है? क्रिएटिविटी डिपेंड कर रहा है सेक्स पे, लोकलिटी पे, इथनिसिटी। मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्रिएटिविटी। तो आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को समझिएगा, जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट हो गया, जो डिपेंड नहीं करता है, जो फ्री है, वो इंडिपेंडेंट हो गया। और तीसरा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि हम हमारी स्टडी में हम काम जो मुख्य करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही करते हैं, क्रिएटिविटी पे ही आता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी नहीं होता। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो न डिपेंडेंट होते हैं न इंडिपेंडेंट होते हैं, बल्कि वो वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, रिसर्चर से रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, जिस पे डाटा कलेक्शन किया जा रहा है उससे रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, जो अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट को प्रभावित करता है। और कहा यह जाता है कि खास के यदि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आपको कंट्रोल करना ही होगा। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और एक चीज और एक है जो हम लोग पहले शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ऑपरेशनल डिफिनीशन की बात हमने की थी, वही बात यहाँ भी आ रही है कि ऑपरेशनल डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल्स हेल्प इन मेजरमेंट। हमने ये भी कहा कि जिस रूप में हम किसी टर्म को मेजर करते हैं उसी को उसका ऑपरेशनल डिफिनीशन कहते हैं। और यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी चीज को डिफाइन कर दीजिए कि इतनी सीटी का मतलब
इसमें क्या है कि या तो मेल या तो ट्राइबल या नॉन ट्राइबल। इथनिसिटी के आधार पे हमने दो ग्रुप कौन कौन लिया है, एक ट्राइबल दूसरा नॉन ट्राइबल। इसी तरह से ये कह रहा है कि ऑपरेशनल डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल हेल्प इन मेजरमेंट, मतलब ये जरूरी है कि जब भी आप वेरिएबल को सिलेक्शन करें तो उसको डिफाइन भी कर दें कि कैसे, जैसे आप क्रिएटिविटी को आप कैसे मेजर करने वाले हैं ये बताना बहुत जरूरी है। आपका सेक्स का क्या मतलब है यहाँ इस स्टडी में, इथनिसिटी का क्या मतलब है, लोकलिटी का क्या मतलब है, या फिर जितने भी संबंधित संप्रत्यय का चुनाव आप अपने शोध में करते हैं उस सब को परिभाषित करें जिस रूप में उसको आप मापने वाले हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जैसे हम लोग अचीवमेंट टेस्ट में ब्लूप्रिंट का कहते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो नक्शा बनवाते हैं, उसी तरह से किसी भी रिसर्च में रिसर्च डिजाइन का वही रोल है। वो बताता है कि रिसर्च का प्रारूप कैसे होगा, इसमें डाटा कलेक्शन कैसे होगा, इसमें कौन किस तरह के टूल का हम सिलेक्शन करेंगे, मतलब हमारा इंटायर रिसर्च प्रोसेस कैसे बढ़ेगा उसी को हम लोग रिसर्च डिजाइन करते हैं, जिसमें मेथड का सिलेक्शन होगा, सैंपल का सिलेक्शन होगा, टूल का सिलेक्शन होगा और आदि आदि बहुत सारी बातों का सिलेक्शन होगा। मतलब डिजाइन का मतलब ही है प्रारूप, जिस प्रारूप को आधार बना के हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ रिलेटेड प्रोसीड्यूर्स टू बी यूज्ड इन द स्टडी। हमने अभी कही दिया कि ब्लूप्रिंट आप जानते हैं डिजाइन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो रिसर्च हम लोग करने वाले हैं। इट टॉक्स अबाउट रिसर्च में, अब क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, फिलोसफिकल लेंगे, सर्वे लेंगे, एक्सपेरिमेंटल लेंगे। यदि हम किसी डाटा के ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना चाहते हैं, दो मेथड को कंपेयर करके उसके इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं तो ऑब्वियस है एक्सपेरिमेंटल मेथड लेंगे। तो कौन सा मेथड लेंगे ये भी रिसर्च डिजाइन का हिस्सा है। डाटा कलेक्शन, रिसर्च टूल, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड अदर्स एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन। मतलब रिसर्च डिजाइन में हम पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि मेथड कौन होगा, डाटा कैसे कलेक्ट होगा, रिसर्च का टूल कौन होगा, हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कैसा लगाएंगे आदि। इट हेल्प्स टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये तो हमने पहले ही कह दिया कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि डिजाइन में इसकी भी चर्चा कि कैसे कंट्रोल करें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को और कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिजाइन एक्सप्लेन्स इट। द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट और सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल और डाटा कलेक्शन। हमने पहले कहा कि ये रिसर्च डिजाइन का पार्ट है, इसीलिए हमने पहला बुलेट यही लिखा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। So there may not be any need to explain it separately, but there are some resources, there are some books in which it has been given as another step of research. So part of research, it is a part of research. You cannot consider it as a separate a step of research because it comes in the purview of research design. लेकिन अब जब हम डाटा कलेक्शन में टूल की बात करेंगे, रिसर्च टूल की बात करेंगे, तो या तो टूल हमारा स्टैंडर्डाइज्ड होगा किसी मार्केट में, जैसे मान लो कि हम ये क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए हम पीके पासी और इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड, इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं और बहुत सारे टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तो किसी एक टेस्ट को ले सकते हैं मार्केट से, या फिर हम खुद भी यदि कोई ऐसा कंसेप्ट है जिस पे रिसर्च टूल अवेलेबल नहीं है, या फिर हम चाहते हैं कि अपना भी एक टूल डेवलप करें, स्टैंडर्डाइजेशन के सारे मैकेनिज्म से परिचित हैं, हमको एक्सपर्टीज हेल्प मिल सकता है, तो हम स्वयं भी
टूल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च टूल, आइदर वी कैन employ a standardized test or we can standardize a test as our own। और यदि ये टेस्ट क्वालिटेटिव नेचर का है, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इससे भी डाटा का कलेक्शन होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में, इवन सर्वे रिसर्च में, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यदि टेस्ट के माध्यम से हमको डिसाइड करना है कि कोई टेस्ट का यूज करना है, जैसे यहाँ तो हमने एग्जाम्पल लिया क्रिएटिविटी का, उसमें तो टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारा हमको डाटा ऐसा गैदर करना है जिसका नेचर क्वालिटेटिव है, तो हम इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। मतलब कि डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन of the research tool for data collection as an important step of research process tells about the standardized test or a test to be standardized or other form of data collection that is qualitative. The next step is sample selection and data collection। हमने पहले भी कहा कि इसकी चर्चा हम लोगों ने थोड़ी सी कर दी है रिसर्च डिजाइन में, और फिर यहाँ भी कह रहे हैं इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन ऑफ द स्टडी, सो देयर मे नॉट बी नीड टू डिस्कस इट एज ए सेपरेट स्टेप बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च डिजाइन। इन द रिसर्च डिजाइन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड लाइक दैट। अगेन we have already discussed it in the delimitations of the study। हम अपने प्रॉब्लम को डिलिमिट कर रहे हैं, हमारा ये पॉपुलेशन, उससे हम सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल को फिर डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, फिर वेरिएबल्स के आधार पे हम अपने सैंपल को डिसाइड करते हैं 300 लेना है, 500 लेना है, 500 लेना है तो कैसे लेना है, ये सब प्रॉब्लम के डिलिमिटेशंस का पार्ट है। और मैं यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सैंपल सिलेक्शन एंड डाटा कलेक्शन भी न केवल रिसर्च डिजाइन का पार्ट है, बल्कि ये डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी का पार्ट है, और वहाँ भी हमने प्रकारांतर से इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। अब ये जब हम सैंपल सिलेक्शन एंड डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, हमने अभी पीछे में भी कहा कि ये डाटा कैसा है। हमारा क्वालिटेटिव डाटा है तो वो कैसे कलेक्ट होगा। हम चाहते हैं किसी आदमी के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना विस्तार से, तो हम टूल की मदद से उसको नहीं जान सकते, हमको क्वालिटेटिव डाटा की जरूरत है। तो यदि क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए तो हमको टेस्ट चाहिए, किसी जैसे अब क्रिएटिविटी का टेस्ट हो, इंटेलिजेंस का टेस्ट हो या कोई और टेस्ट। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा चाहिए तो हमको इंटरव्यू का यूज करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन का होगा, या फिर हम यदि केस स्टडी कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में हम डाटा कैसे कलेक्ट करें। या तो क्वालिटेटिव नेचर का डाटा है तो सर्वे का टूल डिफरेंट होगा, क्वेश्चनर भी बन सकता है, हम इवन चेकलिस्ट से काम चला सकते हैं और शेड्यूल बना सकते हैं। बहुत सारा डाटा कलेक्शन का टूल हमारे पास है, टेस्ट से लेकर और फिर क्वेश्चनर तक, फिर शेड्यूल तक, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन तक। तो नेचर कैसा है हमारे डाटा का, उस पर डिपेंड करेगा कि हम सैंपल सिलेक्शन है, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। और ये इस चीज़ का की जानकारी और इस चीज़ की एक्सपर्टीज का होना जरूरी है रिसर्चर को। जैसे मान लीजिए कि हम इंटरव्यू करते हैं तो कैसा करेंगे, ये ओपन इंडेड कर सकते हैं, क्लोज्ड इंडेड कर सकते हैं, हमको इतना ही पूछना है, और हमको कुछ और ऐसी चीज भी जानकारी चाहिए जो हम भी नहीं सोच रहे हैं, वो अपने से कह देगा, तो ओपन इंडेड। हमने कहा कि इस पे आप लिख दीजिए। तो किस तरह की प्रकृति है हमारे रिसर्च की, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, और इसीलिए सैंपल सिलेक्शन एंड डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ research process, whether it is discussed separately or as a part of the limitation of the study or research design. Now the next step
इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा का एनालिसिस कैसे? ऑब्वियस है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका डाटा अलग होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके डाटा का एनालिसिस अलग होगा। तो डाटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अब हमको परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट स्टूडेंट ने ये कहा, या हमको फिर कंपेयर करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो जैसा हमारा डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाटा एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो कि अब हमको किन किन लोगों ने क्या क्या ओपिनियन दिया और अपने पहले ओपिनियन पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका हुआ किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, तो परसेंटेज निकालेंगे कि पहला इस पे इतने परसेंट लोगों ने कहा, इस पे इतने परसेंट लोगों ने कहा। लेकिन जब हम देखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, तो फिर रिलेशनशिप को टेस्ट करना पड़ेगा, कोरिलेशन लगाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना पड़ेगा। सो दिस इज डाटा एनालिसिस। और हम लोग टेबल बना के उसमें डाटा का एनालिसिस करते हैं। टेबल 1 मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टी वैल्यू बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑन फ्लुएंसी डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड लाइक दैट। अभी हमने क्वालिटेटिव का भी कुछ एग्जाम्पल। यदि फिलोसफिकल रिसर्च है तो उसका एनालिसिस अलग होगा। तो ये कह रहा है कि डाटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस नहीं भी है और हाइपोथेसिस है भी, क्योंकि यदि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसका डाटा भी अलग है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कुछ डाटा ऐसा मिक्स्ड करके हम लोग इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन से यदि प्राप्त किए हैं तो उसका एनालिसिस अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने डिजाइन में क्या डिसाइड किया है। और यदि ये स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी नेक्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं 0.05 लेवल, मतलब 95% विश्वास के साथ, या 0.01 लेवल 99% विश्वास के साथ, परसेंट में भी और लेवल में। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च में, खासकर जहां हम पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। डाटा एनालिसिस का इट प्रोवाइड्स फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी एंड हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वो हेल्प करता है फाइंडिंग्स प्राप्त करने में और कंक्लूजन ड्रॉ करने में। जैसे मान लीजिए कि हमने हाइपोथेसिस बनाई कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अब यहाँ हमको देखा कि मेल स्टूडेंट एक्सेल कर रहा है, सुपीरियर है क्रिएटिविटी, तो वहाँ हाइपोथेसिस उसका जवाब मिल गया हमको। और इससे क्या होगा कि जो फाइंडिंग्स हमने एनालिसिस के फलस्वरूप टी टेस्ट लगाया, टी टेस्ट का वैल्यू देखा 0.05 लेवल और 0.01 लेवल पे वैल्यू सिग्निफिकेंट आया, तो सिग्निफिकेंट आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर हम लोग मीन देखते हैं कि किसका मीन हायर है, पता चला कि मेल का मीन हायर है, तो हम कहते हैं कि मेल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स आर सिग्निफिकेंटली सुपीरियर in their creative ability in comparison to the female secondary school। तो ये जो हम लोग एनालिसिस के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं वही बेसिस होता है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स का। सो डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी exhaustive as well. It needs expertise and this step conclusions, implications and suggestions। मतलब जब हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं तो कंक्लूड करते हैं कि हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स मुख्य रूप से क्या है। फाइंडिंग से ही कंक्लूजन आता है, मतलब फाइंडिंग तो मोर और लेस डाटा एनालिसिस से हमको प्राप्त हो। अब हमको कंक्लूड करना है, और कंक्लूड करने में क्या क्या ध्यान रखना है, ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू कंक्लूड इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब कहा था कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अब ये जो हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई किया था उसको हमको जवाब देना, तो कहेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स वाज फाउंड सुपीरियर इन देयर क्रिएटिव एबिलिटी।
इसकी चर्चा हमने उसके इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन में ही हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंडिंग्स हमारा पार्ट है, लेकिन अब इसको हम कंक्लूड किसके टर्म में कर रहे हैं, जो स्पेसिफाइड हमारा हाइपोथेसिस है उसके टर्म में। सो कंक्लूजन्स और इम्प्लीकेशंस का मतलब है स्टेटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। हमने कहा था कि कॉपी नहीं होनी चाहिए, जो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो यूजफुल होना चाहिए। अब हमको लिखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ये हमारी स्टडी का जो फाइंडिंग्स है, हमारी स्टडी का जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे इसका इम्प्लीकेशन होगा, इसको भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। सो इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड देन सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी। आपने रिसर्चर के रूप में काम किया, काम करने के क्रम में आपको लगा कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते थे जो जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम लिमिट था, आपका और भी लिमिटेशंस था, लेकिन आप उसको सजेशंस में डाल सकते हैं कि नहीं ये काम भविष्य में होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट काम है, तो आप उसको डाल देते हैं सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ये बात की कि जो रिव्यू है, जब हम किसी स्टडी को देखते हैं तो उसके सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी से भी हमको अपने रिसर्च के लिए प्रॉब्लम मिल सकता है। So conclusions, implications and suggestions are important steps of research process. And this is the last slide, that is preparation of report and publication. So as we told, we write the thesis in which we provide report, but it may be published and it may not be published. Usually after the completion of the PhD viva, successful PhD viva, it is being suggested that you must publish it. वो पहले की बात है, अब तो फिर ऑनलाइन रिसर्च को डिफरेंट फोरम पे डालने की बात है, तो वहाँ भी मोर और लेस इट इज पब्लिश्ड। तो जब हम पब्लिकेशन के फॉर्म में डालेंगे तो वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड इट्स पब्लिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मेन बॉडी ऑफ दी, मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या हम लोग ध्यान रखेंगे। मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में क्या आता है, 5 चैप्टर। यदि सर्वे रिसर्च है तो उसके 5 चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन 5 चैप्टर्स आएंगे, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डिजाइन ऑफ द रिसर्च, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये मेन बॉडी ऑफ रिसर्च मानता है, तो मेन बॉडी लिखेंगे। फिर है लिस्ट ऑफ टेबल्स। आपने कहा नहीं किया डाटा एनालिसिस में टेबल बनाएंगे, जितने भी टेबल है उसका एक लिस्ट बनाएंगे और वो डालेंगे कहाँ, मेन बॉडी से पहले, और उसका जो नंबरिंग होगा 1 2 3 से नहीं स्टार्ट होगा, उसका रोमन वगैरह में। जैसे आप देखते हैं कि कोई जो किताब होती है उसमें प्रीफेस आदि आदि जो चीज़ें होती है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह को मेन बॉडी में नहीं मानते हैं और उसका पेजिंग वहाँ से नहीं शुरू करके पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो इसका भी उसी तरह से चैप्टराइजेशन करने में पेजिंग भी ऐसे ही। फिर रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, सजेस्टेड रीडिंग्स। रेफरेंस का मतलब यह है कि वे सारे टेक्स्ट जैसे हमने रिव्यू करके जिसको हमने अपने मेन बॉडी में लिया है, जैसे हम कहते हैं कि कुआं सी 2005, वर्मा 2017, और इसको हमने कोट किया अपने बॉडी में, तो ये हो गया रेफरेंस। यदि हम कोई किताब वगैरह की मदद से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं तो उसको बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस तथ्य पे और यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जनरली रिसर्च में इसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन किया जा सकता है कि सजेस्टेड रीडिंग्स, मतलब कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ने से आपको और मदद मिल सके। ग्लोसरी का मतलब है जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, ताकि जो रिसर्चर है, जो यंग रिसर्चर है, जो फ्यूचर रिसर्चर है, वो जब पढ़ने लगे तो उसको जब उस शब्द का मतलब समझ में नहीं आए तो उसको पिप इंटू कर ले ग्लोसरी में, उसको डिफाइन करते हैं।
अपेंडिसेज, जैसे हम जितने भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा कि वाटर टेस्टिंग मेहंदी का कर सकते हैं या किसी और का टेस्ट यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग अपेंडिसेज, तो इसको वहां डालते हैं। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसका जो डाटा है, र डाटा जो है जिसको आपने एनालाइज नहीं किया, उस र डाटा को भी हम लोग अपेंडिक्स में डालते हैं। तो अपेंडिक्स सबसे लास्ट पार्ट है, रेफरेंसिंग के बाद भी डाल देते हैं। जितने मान लीजिए आपने 2 टूल का इस्तेमाल किया, टूल की कॉपी लगा दीजिए, उसके डाटा यदि आया उसको लगा दीजिए। तो ये एक स्टेप है अपेंडिसेस। इसको अपेंडिसेस का मतलब है कि मोर देन वन, और यदि एक ही है तो अपेंडिक्स लिखिए। राइटिंग स्टाइल, जैसा कि आपको जानना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि जब हम रिसर्च लिखते हैं, रिसर्च की जो भाषा होती है उसका एक तो अपना स्टेप तैयार है, डिजाइन तैयार है। जैसे रिसर्च का एक डिजाइन है, वैसे लिखने का भी अपना एक डिजाइन तैयार है, चैप्टर कैसे लिखेंगे। दूसरी उसकी भाषा भी डिफाइन, यू हैव टू राइट इन द थर्ड पर्सन, आई अंडरस्टैंड, ये नहीं लिखना फर्स्ट पर्सन। मतलब यह है कि हम बायसनेस को त्याग करके सब कुछ लिख। द रिसर्चर आइडेंटिफाई, मतलब आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, रादर आई एम ए न्यूट्रल रिसर्चर। तो ये सारी चीजें भी राइटिंग स्टाइल का हिस्सा है। और पब्लिकेशन, अब कैसे पब्लिश करना है, बहुत सारे लोग अपने रिसर्च के वर्क को चैप्टराइज करके अलग से पब्लिश कराते हैं, बहुत लोग उसको वैसे ही डाल देते हैं। अब तो शोध गंगा वगैरह पे बहुत सारे रिसर्च को डालने का, सारी यूनिवर्सिटीज को डालना यूजीसी का रिकमेंडेशन हो गया। तो ये भी उससे संबंधित है कि कैसे आप पब्लिश कराते हैं, इसके भी कई सारे तरीके हैं। बट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ our research process, and so it is also an important step of our research process. So we have categorically discussed all the related important steps of research process. Now at the end, as we started the lecture, we shall conclude the lecture, so that we can summarize the important steps of research process. So you can see, we identify the steps. The first slide related to a step which tells about the identification of the research problem, defining and delimiting the research problem, review of related literature, formulation of hypothesis, identification, manipulation and control of variables related to a study. This second slide is also related to the steps, that is formulation of research design. It continues. Development and selection of tool for data collection, sample selection and data collection, data analysis and interpretation, conclusions, implications and suggestions, preparation of report and publication. So these 2 slides deal with all the related important steps of research process, and we have discussed in detail the first step, that is identification of research problem. Then the next step, how defining and delimiting the research problem, review of related literature as an important next step, formulation of hypothesis as a next step, identification, manipulation and control of variables next step, formulation of research design as next step, development, selection of research tool for data collection as an important step of test of research process. The next important step of research process, sample selection and data collection. Again, data analysis and interpretation, conclusions, implications and suggestions, and the last
step, that is preparation of report and publication. So in this way we have discussed today about the important process of research. डाटा कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग और उसके पब्लिकेशन तक हम लोगों ने चर्चा की। इस क्रम में हम लोगों ने डाटा के सिलेक्शन की बात की, रिसर्च डिज़ाइन की बात की, हाइपोथेसिस की बात की, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की बात की, एनालिसिस की बात की, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स के रिलेशन की बात की, और इस तरह से देखा कि रिसर्च एक एक्सपर्ट वर्क है और इसके स्टेप्स डिसाइडेड है। बिना सामान्य रिसर्च प्रोसेस की जानकारी के हम लोग ढंग से रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे पहला काम यह है कि वह पूरी गंभीरता से रिसर्च प्रोसेस के इम्पोर्टेंट स्टेप्स को समझे, ताकि वो रिसर्च वर्क को साइंटिफिक ढंग से सक्सेसफुली कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर related to important steps of research process. Thank you.